हम पढ़ेंगे डैनियल 7 चैप्टर 8 चैप्टर। पिता पवित्र आत्मा हमें सहायता कर आपके वचन को हम समझ सके और आपके वचन के अधीन होकर हम ज्ञानी बन जाए और परमेश्वर हमारे अज्ञानता निकल जाए और अज्ञानता के कारण हम नाश ना होने पाए। अब हमारी सहायता करो, हमें अपने ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में आने के लिए सहायता करो। हमारा चरित्र बनाओ परमेश्वर, जैसा दनियल है वैसा हमारा चरित्र उभर कर आए और हम सचमुच में दनियल का चरित्र में चलना शुरू करें। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। Daniel's vision of the four beasts and of God's kingdom, chapter 7, first verse से पढ़ेंगे। In the first year of Belshazzar, king of Babylon, Daniel had a dream and visions of his head upon his bed. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of the heavens strove upon the great sea. And four great beasts came up from the sea, diverse one from another. The first was like a lion, and had eagle's wings. I beheld till the wings thereof were plucked, and it was lifted up from the earth, and made stand upon the feet as a man, and a man's heart was given to it. And behold, another beast, a second like to a bear, and it raised up itself on one side, and it had three ribs in the mouth of it, between the teeth of it. And they said thus unto it, Arise, devour much flesh. After this I beheld, and lo, another like a leopard, which had upon the back of it four wings of a fowl. The beast had also four heads, and dominion was given to it. After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had great iron teeth. It devoured and brake in pieces, and stamped the residue with the feet of it. And it was diverse from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were three of the first horns plucked up by the roots. And behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth speaking great things. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as a burning fire. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. The judgment was set, and the books were opened. I beheld then, because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. As concerning the rest of the beasts, they had their dominion taken away, yet their lives were prolonged for a season and time. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of a Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory and a kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. I, Daniel, was grieved in my spirit in the midst
of my body, and the visions of my head troubled me. I came near unto one of them that stood by, and asked him the truth of all this. So he told me and made me know the interpretation of the things. These great beasts which are four kings which shall arise out of the earth. But the saints of the Most High shall take the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Then I would know the truth of the fourth beast, which was a diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass, which devoured, brake in pieces, and stamped the residue with his feet. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows, I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against them until the Ancient of Days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom. Thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times, and the dividing of time. But the judgment shall sit, and they shall take away his dominion and consume, and to destroy it unto the end. And the kingdom and dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him. Hitherto is the end of the matter. As for me, Daniel, my cogitations much troubled me, and my countenance changed in me, but I kept the matter in my heart. Chapter 8. Daniel's vision of the ram and he goat. First verse say, in the 3rd year of the reign of King Belshazzar, a vision appeared unto me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me at the first. And I saw in a vision, and it came to pass, when I saw, that I was at Shushan in the palace which is in the province of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river of Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had 2 horns, and the 2 horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beasts might stand before him. Neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will, and become great. And as I was considering, behold, and he goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground. And the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had 2 horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his 2 horns, and there was no
power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones toward the four winds of heaven, and out of one of them came forth a little horn which waxed exceeding great toward the south, and toward the east, and toward the pleasant land, and it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the stars to the ground, and stamped upon them. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down, and an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot? And he said unto me, Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. And it came to pass, when even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me as the appearance of a man. And I heard a man's voice between the banks of Ulai, which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid and fell upon my face. But he said unto me, Understand, O Son of Man, for at the time of the end shall be the vision. Hallelujah. At the time of the end. Hallelujah. 18th verse से आगे. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground. But he touched me and set me upright. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation, for at the time appointed the end shall be. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia, and the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. And in the later time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. And the vision of the evening and the morning which was told is true. Wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. And I, Daniel, fainted and was sick certain days. Afterward I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. Hallelujah. ये हिंदी में पढ़ने में बहुत मज़ेदार है. ओके, दानियल दर्शन देखा है. ओके, और ये हमारे अभी आखिरी दिनों में होने वाले बातों के साथ भी उसके अंदर कुछ छोटा छोटा बात है.
उसके बारे में ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन दानियल ने दर्शन देखा था उसके बारे में हम देखेंगे। कैसा दर्शन परमेश्वर के प्रार्थना करने वालों को देता है परमेश्वर। हालेलुया। प्यारा सा दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया है। प्यारा सा मतलब है खतरनाक दर्शन, लेकिन जिस तरह से उसको समझाया है, स्वर्गदूत उसको दिखाई दिए, कैसे कैसे परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसके साथ बातें की, वो मज़ेदार है। ओके, दानियल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन 4 पशु पहले वचन से 7 अध्याय के पहले वचन से। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गए, नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पंजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य किसी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन। 9 वचन से आगे। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। पशुओं का अर्थ। मुझ दानियल का मन विकल हो गया। 15 वचन से आगे। और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं।
जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पिस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदले देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3 वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उल्लई नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींगे बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छू आया और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला और जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया, वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तीरों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला।
11 वचन से आगे, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार न हो तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। 15 वचन से आगे, यह बात दर्शन में देखकर मैं दनियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उल्लई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वह मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मोह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रुमार बकरा यूनान का राज्य है। और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा। वह सींग जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा किसी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फुलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हकीमों के हकीम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। हालेलुया। तब मुझ दनियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के आत्मा हमें इन वचनों के भेद अच्छी तरह से फिट एंड फिक्स करा हमारे अंदर। हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑल्टरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 18 chapter 10 verse 18 verse, 2 Chronicles 13 chapter 14 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय 10 वचन से 18 वचन। इतिहास की दूसरी पुस्तक दूसरा इतिहास 13 अध्याय 14 अध्याय। हमने अकेले में बैठकर इन वचनों को पढ़ना है, 2 साल के बाइबल रीडिंग को।
अकेले में बैठकर पढ़ना हमारी मर्जी है, हमने अपने तरीके से इसे अकेले में बैठकर पढ़ना शुरू किया है। आप अपनी तरह से जैसा आप करना चाहते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं इसे, लेकिन हम व्यक्तिमत्व चरित्र बनाना चाहते हैं। परमेश्वर जो हमारे जीवन में बदलना चाहते हैं, हम उसको मौका देना चाहते हैं कि हमारे जीवन को वो बदले। हम परमेश्वर के अधीन रहकर अपने व्यक्ति के अंदर, हमारे पर्सनालिटी के अंदर, पर्सन के अंदर बदलाव को देखना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहता है उस दर्शन में हमें फिट एंड फिक्स करने की हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए हम व्यक्तिगत रूप से इसे पढ़ते हैं। अब आपको जैसा पढ़ना है वैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित है पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इन सारे वचन को पढ़ते समय हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें सहायता करो, हमें फिट एंड फिक्स करो, ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, यीशु नासरी के नाम में।